Hello students, this is our third video about the chapter The Homecoming. In the previous two videos, we saw that Phatik Chakravarti, the main character of the story, along with his group of friends, were trying to heave a log that was lying on the mud flat of a river. But suddenly, his brother Makhan comes there and he sat on the log. But Phatik and his friends heave that log along with Makhan, and Makhan rose from mud and he beats Phatik and scratches his face and runs to home quickly. Then Phatik sit on a sunken barge, moving his legs to and fro. A grey-bearded man comes there and asks about Chakravartis. He asks where Chakravartis live, but Phatik, in a rage, tells him that go and find out. Then Chakravarti's servant, comes at the scene to take Phatik at home. And after going home, Phatik and Makhan lied to their mother that Phatik says Makhan were trying to beat him, but Makhan says Phatik is trying to beat him. So suddenly, a grey-bearded man who asks about Chakravartis to Phatik comes there, and Phatik's mother recognizes him that he is her brother, that is Phatik's mama. His name is Bishambar. Then Bishambar asks about the two children and their education. Phatik's mother tell him that Phatik is a perpetual nuisance, but Makhan is a good boy. Then he offers to take Phatik with him to Calcutta, and his mother readily agrees to it. And Phatik also agrees to it because he thinks that he will get to know new place, new people. That's why he readily agrees to it. Then it was an immense relief to the mother to get rid of Phatik. She had prejudice against the boy, and no love was lost between the two brothers. तो जब मामा बोलते हैं कि मैं फटिक को साथ में लेके जाऊंगा, तो फटिक की माँ को लगता है कि मुझे अब इससे छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि वो उसे पहले से ही पता था कि फटिक कैसा है, और उसे ये भी लगता था कि इससे दोनों भाइयों के बीच का प्यार भी कम नहीं होगा, वो दूर रहेंगे तो वही अच्छा है. She was in daily fear that he would either drown Makhan someday in the river, or break his head in a fight, or run him into some danger or other. She always had fear that Phatik will drown Makhan in the river while playing, or break his head in fight, or put him in some danger. तो ये डर उसकी माँ को हमेशा लगा रहता था, इसीलिए वो अब रिलीफ फील कर रही है कि क्योंकि उसके मामा उसे अपने साथ में ले जाना चाह रहे हैं. At the same time, she was somewhat distressed to see Phatik's extreme eagerness to get away. बट साथ ही में उसे ये भी डर था कि फटीक तो कलकत्ता जाने के लिए काफ़ी उत्साहित है, लेकिन वो वहाँ पे भी कुछ ऐसे उपद्रव ना करे, ये भी डर उसके माँ के मन में था. फटीक
as soon as all was settled, kept asking his uncle every minute when they were to start. फटी अब अपने अंकल को बार बार पूछ रहा है कि अंकल हम अब कब निकलने वाले हैं, हम कलकत्ता के लिए कब निकलने वाले हैं. He was on pins and needles all day long with excitement and lay awake most of the night. तो वो काफ़ी खुश था, काफ़ी एक्साइटमेंट के मारे उछल रहा था और वो रात भर सोया भी नहीं. एक्साइटमेंट के कारण वो रात भर सोया भी नहीं. He bequeathed to Makhan in perpetuity his fishing rod, his big kite, his marbles. Indeed, at this time of departure, his generosity towards Makhan was unbounded. तो अब जब माखन जाने वाला है तो ही बिक्विट मतलब वसीयत में अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम लिख देना. तो मानो एक प्रकार से जो भी उसके पास था, उसके फिशिंग रॉड, मछली पकड़ने के रॉड, उसकी पतंगे, उसके कंचे, मानो एक प्रकार से उसने वसीयत के तौर पे अपने छोटे भाई को दे दी. And at the time of departure, his generosity towards Makhan was unbounded. तो उसका जो उदार मन था वो उसकी कोई सीमा नहीं थी. जाते समय उसकी कोई सीमा नहीं थी. Now, when they reached Calcutta, Phatik made acquaintance of his aunt for the first time. तो जैसे ही वो कलकत्ता पहुंचते हैं तो वो फटीक अपनी मामी को पहली बार देखता है. She was by no means pleased with this unnecessary addition to her family. तो जब वो देखती है कि फटीक उसके हस्बैंड के साथ आया है तो वो ये देखकर खुश नहीं होती है. Because she found her own 3 boys quite enough to manage without taking anyone else. Fatik's mama already having 3 boys, so Fatik's mommy thinks that I can't manage the 4th one in the house. उनके पहले से 3 बच्चे होते हैं तो उसकी मामी को लगता है कि ये 4th इसे मैनेज करना मेरे लिए कठिन होगा. And to bring a village lad of 14 into their midst was terribly upsetting. तो 14 साल के बच्चे को घर में लाना, क्योंकि वो शरारती होते हैं, वो उसके लिए काफ़ी अपसेटिंग था. Bishambar should really have thought twice before committing such indiscretion. तो मामी को लगता है कि बिशंबर ने उसको अपने साथ लाने से पहले 2 बार सोच लेना चाहिए था. In the world of human affairs, there is no worse nuisance than a boy at the age of 14. उसकी मामी को लगता था कि ये दुनिया में 14 साल का बच्चा काफ़ी उपद्रवी होता है. He is neither ornamental nor useful. फटिक देखने में भी उतना अच्छा नहीं था, उसकी कदकाठी भी उतनी अच्छी नहीं थी और वो किसी काम का भी नहीं था. It is impossible to shower affection on him as a little boy, and he is always getting in the way. तो उसकी मामी को लगता था कि ये जो ऐसा है इसके ऊपर प्यार दर्शाना ये भी उसे इम्पॉसिबल लग रहा था और वो हमेशा उसके किसी काम में आड़े आ रहा था. If he talks with a childish lisp, he is called baby, and if he answers in a grown-up way, he is called impatient. तो जब कभी भी वो लड़खड़ा के बोलता था
बात करता था तो उसे बेबी बोलते थे, तो बच्चा है। और जब कभी भी वो समझदारी से आंसर्स देता था तो उसे इम्पर्टिनेंट कहा जाता था। Then in fact any talk at all from him is resented. उसकी जो कोई भी बात है उसका हमेशा ही विरोध किया जाता था। Then he is at the unattractive growing age. वो अब कौन सी एज में? अनअट्रैक्टिव ग्रोइंग एज। वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा था वो और भी अनअट्रैक्टिव दिखना शुरू हो गया था। He grows out of his clothes with indecent harsh. His voice grows hoarse and breaks and quavers. तो इस उम्र में शरीर बढ़ता है, उसकी ग्रोथ काफ़ी फास्ट होती है, उसकी आवाज़ में चेंजेस आते हैं। हिज फेस ग्रोथ सडनली एंगुलर, उसका फेस स्ट्रक्चर बदल जाता है और वो दिखने में भी पहले जैसा नहीं लगता है। It is easy to excuse the shortcomings of early childhood, but it is hard to tolerate even unavoidable lapses in a boy of 14. तो बचपन की गलतियों को हम एक प्रकार से माफ कर सकते हैं हम, लेकिन ये जो 14 एज में चेंजेस होते हैं वो अनअवॉइडेबल होते हैं किसी के भी लाइफ में, ऐसा उसकी मामी का कहना है। द लैड हिमसेल्फ बिकम्स पेनफुली सेल्फ कॉन्शियस। अब वो बच्चा भी अपने बारे में अब सोचने लगता है। व्हेन ही टॉक्स विद elderly people he is either unduly forward or else so unduly shy that he appears ashamed of his very existence. तो वो जब कभी भी बड़े लोगों से बात करता था तो कभी कभी ज़्यादा बात कर देता है और कभी कभी एकदम ही शाय फील करता है और उसे कभी कभी लगता है कि मैं इस दुनिया में क्यों हूँ। उसे अपने एग्जिस्टेंस पे भी शर्म आने लगती है। ये सब चीज़ें टीनेज में 14 एट द एज ऑफ 14 ये सब चीज़ें हर बच्चे के साथ होती है। तो इस प्रकार से वो चीज़ें अब फटीक के साथ भी हो रही थी। It is at this very age when in his heart of hearts a young lad most craves for recognition and love. तो ऑथर बोलते हैं कि इस उम्र में किसी भी बच्चे को लगता है कि वो उसे प्यार मिले, उसे लोग उसकी तरफ ध्यान दे। And he becomes the devoted slave of anyone who shows him consideration. और जो कोई भी उसकी तरफ ध्यान देता है, उसको प्यार देता है, वो एक प्रकार से उसका स्लेव बन जाता है, गुलाम बन जाता है। But none dare openly love him. But in the case of fatigue, no one openly loves him. For that would be regarded as undue indulgence and therefore bad for the boy. तो ऐसा कोई करेगा तो वो एक प्रकार से बच्चे के लिए फालतू बात हो जाएगी और ये सब सोच के वो बाकी लोग उसके साथ ऐसा नहीं करते हैं। So what with this scolding and chiding, he becomes very much like a stray dog that has lost his master. तो ये सब चीज़ों के कारण, डांट खाने के कारण वगैरह, वो एक प्रकार से जो रोड पे कुत्ते घूमते हैं जिनका कोई मालिक नहीं होता, उस प्रकार की उसकी हालत हो चुकी थी। For a boy of 14, his own home is the only paradise. 14 साल के बच्चे के लिए उसका घर एक स्वर्ग होता है। To live in a strange house with the strange people is little short of torture. उस पीपल एज में किसी दूसरे के घर रहना, दूसरे लोगों के साथ रहना, ये एक प्रकार से टॉर्चर था। While the
height of bliss is to receive the kind looks of women and never to be slighted by them. तो किसी पराये लोगों के घर में रहना, पराये लोगों के साथ में रहना, ये एक प्रकार से टॉर्चर था उसके लिए। बट 14 साल की बच्ची के लिए आनंद की बात क्या होगी, तो वो उस घर की औरत, माँ हो, मामी हो, उससे प्यार मिलना और उनसे कभी डांट ना मिलना, ये सब बातें उसके लिए आनंददायी होती है 14 साल की बच्ची के लिए। It was anguish to fatigue to be over the unwelcome guest in aunt's house, despised by this elderly woman and slighted on every occasion. तो फटीक के लिए काफ़ी कष्टदायी था कि वो मानो एक प्रकार से मामी के घर में एक अनवेलकम गेस्ट था, एंड एवरी टाइम शी यूज टू scold him, slight him. So if she ever asked him to do anything for her, he would be so overjoyed that he would overdo it. Whenever his aunt asked him to do anything, he feels so overjoyed and he would overdo it. जब कभी उसकी मामी उसे कोई काम बताती थी तो उसे काफ़ी आनंद होता था और वो उसी आनंद के मारे वो काम जितना बताए उससे ज़्यादा कर लेता था। And then she would tell him not to be so stupid but get to but to get on with his lessons. तो वो जब कभी भी ऐसा करता था तो फिर से उसे डांट पड़ती थी और उसकी मामी उसे बोलती थी कि जाओ अपनी पढ़ाई करो। The cramped atmosphere of neglect in his aunt's house oppressed Patik so much that he felt that he could hardly breathe. Because of such atmosphere, Patik now felt that he could hardly breathe. मानो उसे एक प्रकार से सांस लेने की भी मुश्किल हो रही थी, उसका दम घुट रहा था इस एटमॉस्फेयर में। He wanted to go out into the open country and fill his lungs and breathe freely. उसे लगता था कि मैं घर से बाहर जाऊँ, खुली हवा में जाऊँ और जी भर के खुली हवा में सांस लूँ। बट देयर वॉज नो ओपन कंट्री टू गो, लेकिन वहाँ पे आजू बाजू में सब बिल्डिंग्स थी और कहीं घूमने के लिए ऐसी कोई जगह भी नहीं थी। सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय कलकत्ता हाउसेस एंड वॉल्स, he would dream night after night of his village home and long to be back there. तो जिस तरह से आजू बाजू में पूरे बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स थी, उसे कोई ओपन स्पेस नहीं दिख रहा था घूमने के लिए। तो अब वो हर रात उसे लगता था, वो सपने देखता था कि मैं जल्दी से जल्दी कब घर जा पाऊंगा। He remember the glorious meadow where he used to fly kite all day long. अब उसे वो उसके गांव के बाजू का हरा भरा घास का मैदान याद आ रहा था जहाँ पे वो दिन भर अपनी पतंग उड़ाता था। The broad river banks, नदी के किनारे, where he would wander about the livelong day singing and shouting. अब उसे वो नदी के किनारे याद आ रहे थे जहाँ पे वो दिन भर गाते हुए चिल्लाते हुए घूमता था। The narrow brook means झरना, where he could go and dive and swim at any time he liked, जहाँ पे वो कभी भी जब चाहे तैरने के लिए जाता था। He thought of his band of boy companions over whom he was despot, and above all the memory of that tyrant mother of his who had such a prejudice against him occupied him day and night.
नाउ अब उसे उसके ग्रुप के बच्चों की भी याद आ रही थी, जिनके ऊपर वो अपना दबाव डालता था। और उसकी माँ, जहाँ पे उसे टायरेंट बोला गया, क्रूर, उसकी भी उसे याद आ रही थी। वो हैड सच अ प्रेजुडिस अगेंस्ट हिम, जिसे लगता था कि ये बुरा है, ये कुछ नहीं कर सकता। ये सब उसे चीज़ें अब याद आ रही थी। दिन में रात में उसके दिमाग में यही ख्याल अब घूमते रहते थे। A kind of physical love like that of animals, a longing to be in the presence of one who is love। तो जिस प्रकार से जानवर, उसके छोटे बच्चे अपनी माँ के पास रहते हैं, उस प्रकार से उसे भी अब अपनी माँ के पास जाने की इच्छा हो रही थी, और जो उसे प्यार करता है उसके साथ में रहने की इच्छा हो रही थी। एंड इनएक्सप्रेसिबल विस्टफुलनेस ड्यूरिंग absence, a silent cry of the inmost heart for the mother, like the lowing of a calf in a twilight. This love, which was almost like animal instinct। तो अब उसे अपनी माँ की याद आ रही थी, जैसे गाय के बच्चे वगैरह जब शाम होती है तो अपनी माँ की याद में वो रोड की तरफ इधर उधर देखते रहते थे कि वो कब से जल्द उनके पास पहुंचेंगी। So it was like animal instinct that was present in human also। So he was feeling like them, agitated, shy, the shy, nervous, lean, uncouth, and ugly boy. No one could understand it, but it preyed upon his mind continually. Uncouth and uncultured means, sorry, uncouth and ugly means uncultured। तो जिस प्रकार से उसका प्रेजेंस था, उसका फिजिकल कंडीशन था, और कोई भी उसे प्यार से बात नहीं करता था, उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था। देयर वॉज नो मोर बैकवर्ड बॉय इन द होल स्कूल देन फटीक। अब यहाँ पे उसके स्कूल के बारे में बताया है। तो उसके स्कूल में, उसके क्लास में उससे ज़्यादा बैकवर्ड और कोई नहीं था, मानो वही एक सबसे ज़्यादा बैकवर्ड बॉय था इन दी होल क्लास। ही gaped and remained silent। He gaped and remained silent when the teacher asked him a question। तो जब कभी उसकी टीचर उसे क्वेश्चन पूछते थे तो वो साइलेंट रहता था, या फिर उसे घूरते थे तब भी वो साइलेंट रहता था। एंड लाइक एन ओवरलैडन आस पेशेंटली सवर्ड ऑल द ब्लोज दैट कम डाउन ऑन हिज बैक। अब उसकी हालत गधों जैसी हो गई थी, जैसे गधों पे रेत भर के उसे मार मार के आगे बढ़ाया जाता है, इसी प्रकार से अब उसकी हालत हो चुकी थी, क्योंकि वो स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या हो रहा है, वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। When other boys were out at play, he stood wistfully by the window and gazed at the roofs of the distant houses। तो जब छुट्टी का टाइम होता था, ब्रेक होता था, तो सभी बच्चे बाहर खेलने के लिए जाते थे, लेकिन वो क्या करता था, आतुरता से विंडो में बैठ के जो बाजू के बिल्डिंग के रूफ है उन पे वो देखते रहता था। एंड इफ बाय चांस ही सॉ, यहाँ पे सॉ है, and if by chance he saw children playing on the open terrace of any roof, his heart would ache with longing। तो बाकी आजू बाजू की बिल्डिंग की तरफ देखते हुए
यदि कोई बच्चा उसे रूप पे खेलते हुए दिखता था तो वो उसे अपने गांव की याद आती थी और उसे लगता था कि मैं जल्द से जल्द गांव पहुंचूं। One day he summoned up all his courage and asked his uncle, "When can I go home?" तो एक दिन उसने काफी हिम्मत करके अपने अंकल से पूछा कि अंकल, मैं घर कब जा सकता हूँ? Then his uncle answered, "Wait till the holidays come." छुट्टियां आने तक इंतजार करो। But the holidays would not come till November, and there was a long time still to wait. और छुट्टियां आने के लिए काफी उसे इंतजार करना था। क्योंकि छुट्टियां नवंबर में आने वाली थी। One day Fatik lost his lesson book. Even with the help of books, he had found it very difficult indeed to prepare his lessons. Now it was impossible. So one day Fatik lost his lesson book. तो उसे बुक के साथ भी पढ़ने में कठिनाई होती थी। तो अब बिना बुक के पढ़ने में तो वो उसे इम्पॉसिबल ही था। Day after day the teacher would cane him unmercifully. इस वजह से उसके टीचर उसे दिन ब दिन छड़ी से मार रहे थे। His condition became so abjectly miserable that even his cousins were ashamed to own him. तो अब इसकी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि उसके जो कजिन थे, मामा के बच्चे थे, वो भी अब उससे ashamed फील करने लगे थे। They began to jeer and insult him more than the other boys. He went to his aunt at last and told her that he lost his book. तो जो उसके कजिन्स थे वही अब बाकी बच्चों से ज़्यादा उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी इंसल्ट करते थे। देन वन डे वो अपनी मामी के पास जाता है और उसे बता देता है कि मैंने अपनी बुक खो दी है। His aunt pursed her lips in contempt and said, "You great clumsy country lot, how can I afford with all my family to buy you new books 5 times a month?" तो उसकी मामी तिरस्कार में कंटेम्प्ट मतलब तिरस्कार अपने होठ हिलाती है और बोलती है, "यू ग्रेट क्लमसी कंट्री लॉट", क्लमसी मतलब बेढंगा, तुम बेढंगे, आई हाउ कैन आई अफोर्ड विथ ऑल माई फैमिली टू बाय यू न्यू बुक्स 5 times अ डे। तो मेरी इतनी बड़ी फैमिली है, इतना खर्चा है, मैं तुम्हें अब कहाँ से हर बार नया बुक ला के दूँ। तो ऐसे उसका मामी का कहना था। That night, on his way back from school, Fatik had a bad headache with a fit of shivering. तो एक दिन स्कूल से लौटते समय फटीक के हेड में काफ़ी दर्द हो रहा था और उसे वो काफ़ी थरथरा भी रहा था। He felt he was going to have an attack of malarial fever. His one great fear was that he would be a nuisance to his aunt. तो उसे लगा कि उसे अब एक मलेरिया होने वाला है। अब ये होने वाला है, इसलिए फिर से उसकी मामी को परेशानी होगी, तो इसीलिए वो उसके मन में डर रहता है। The next morning Fatik was nowhere to be seen. तो अगले दिन फटीक किसी को भी दिखाई नहीं देता है। All searches in the neighborhood proved futile. तो फटीक के मामा उसके फैमिली के लोग उसे ढूंढते हैं लेकिन वो कहीं नहीं मिलता है। The rain had been pouring in torrents all night, and those who went out in search of the boy got drenched through the skin. अब दिन भर उसे ढूंढते हैं, रात में भी ढूंढते हैं, तो काफ़ी बड़ी मात्रा में बारिश हो रही होती है, जो उसे ढूंढने वाले को काफ़ी भीग जाते हैं। At last, बिशंबर asked help from the police. और आखिरकार बिशंबर पुलिस के पास कंप्लेंट करता है कि फटीक मिल नहीं रहा है, कहीं गुम हो गया है। At the end of the day,
A police van stopped at the door before the house. तो आखिरकार एक पुलिस वैन उनके घर के सामने आके रुकती है. It was still raining and streets were flooded. अभी भी काफी बारिश हो रही होती है और वो रास्ते पूरी तरह से पानी से भर चुके होते हैं. तो constables brought out Phatik in their arms and placed him before Bishambar. तो दो पुलिस वाले फटिक को अपने हाथों में उठा के लाते हैं और उसे बिशंबर के पास, उसके मामा के पास रख देते हैं. He was wet through from head to foot. वो सर से लेके पाँव तक पूरा भीग चुका होता है. Muddy all over his face and eyes flushed with fear and his limbs trembling. वो मड से पूरा उसके कपड़े वगैरह खराब हो चुके होते हैं. His face and eyes flushed red. उसका चेहरा, उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी होती है फीवर के कारण और उसके हाथ पैर थरथरा रहे होते हैं. बिशंबर कैरिड हिम इन हिज आर्म्स. तब उसके मामा उसे अपने हाथ में उठाते हैं. एंड टुक हिम इनटू देयर इनर अपार्टमेंट. और उसे उठा के वो अपने घर के अंदर ले जाते हैं. व्हेन हिज वाइफ सॉ हिम शी एक्सक्लेम्ड, व्हाट अ हीप ऑफ ट्रबल दिस बॉय हैज गिवन अस. हैडंट यू बेटर सेंड हिम होम. तो फटीक की यह हालत देखे उसकी मामी उसे चिल्लाती है कि यह बच्चा हमें किस मुसीबत में डाल रहा है, क्यों ना तुम इसे अपने घर भेज दो. फटीक heard her words and sobbed out loud. Uncle, I was just going home, but they dragged me back again. तो फटीक अब जो मामी उसे बोलती है कि तुमने उसे घर क्यों नहीं भेज दिया, ये वो सुनता है. तो वो फटीक रोते हुए बोलता है कि मामा मैं घर ही जा रहा था, लेकिन ये पुलिस वालों में मुझे पकड़ के फिर से यहाँ पे लेके आए. The fever rose very high and all that night the boy was delirious. Bishambar brought in a doctor. Fatigue opened his eyes, flushed with fear, and looked up to the ceiling and said vacantly, Uncle, have the holidays come yet? May I go home? तो उसका बुखार काफ़ी बढ़ जाता है और वो डिलीरियस फील करता है. डिलीरियस मतलब बेहोश. बिशंबर ब्रॉट इन अ डॉक्टर. उसके मामा डॉक्टर को बुलाते हैं. फटीक अपनी आंखें खोलता है जो कि पूरी लाल हो चुकी थी बुखार के कारण, और सीलिंग की तरफ देखता है और वैकेंटली मीन्स भाव शून्य रूप से बोलता है कि मामा क्या छुट्टियाँ आ गई है, क्या मैं घर जा सकता हूँ. तो ये सवाल वो अपने मामा से पूछता है. बिशंबर wiped the tears from his own eyes and took Fatik's lean and burning hands in his own and sat by him through the night. तो ये सब देख के फटीक के मामा की आंखों में भी आंसू आते हैं. देन वो उसके ढीले पड़ चुके हाथ अपने हाथों में लेता है जो कि बर्निंग मीन्स काफ़ी गर्म हो चुके थे बुखार के कारण, और उसके बाजू में पूरी रात भर वो बैठा रहता है. उसका मामा पूरी रात भर उसके बाजू में बैठा रहता है. द बॉय बिगन अगेन टू मटर. एट लास्ट हिज वॉइस बिकेम एक्साइटेड. मदर, ही क्राइड, डोंट बीट मी लाइक दैट मदर, आई एम टेलिंग द ट्रूथ. तो अब वो मुंह में ही बातें करना शुरू करता है और एकदम से उसकी आवाज़ बड़ी हो जाती है, एक्साइट हो जाती है और वो बोलता है, माँ मुझे इस तरह से मत मारो, मैं सच बोल रहा हूँ. So the things were happening when he was at his home. तो वो सब चीज़ें उसे अब याद आ रही थी और वो चीज़ें वो
अभी बोल रहा था। द नेक्स्ट डे फटीक बिकम कॉन्शियस फॉर अ शॉर्ट टाइम। अगले दिन कुछ देर के लिए उसे होश आता है। He turned his eyes about the room as if expecting someone to come. वो रूम में इधर उधर अपनी आंखें घुमाता है जैसे कि कोई उसे मिलने आने वाला है। At last, with an air of disappointment, his head sank back on the pillow. He turned his face to the wall with a deep sigh. तो उसे कोई नहीं दिखता है और निराश होकर वो अपना हेड सर तकिए पे रख देता है और दीवार की तरफ मुंह करके एक लंबी सांस लेता है। Bishamber knew his thoughts and bending down his head whispered, Fatik, I have sent for your mother. The day went by. The doctor said in troubled voice that the boy's condition was very critical. तो बिशंबर को उसके फटीक के मन में ख्याल चल रहे थे, उसकी आइडिया आने लगी थी। तो वो बोलते हैं, फटीक, आई हैव सेंट फॉर योर मदर। तो फटीक, मैंने तुम्हारी माँ को बुलावा भेजा है। और वो दिन गुजर जाता है। अब डॉक्टर बोलते हैं घबराहट में कि बॉय फटीक की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है। फटीक बिगेन टू क्राई आउट बाय द मार्क 3 fathoms, बाय द मार्क 4 fathoms, बाय द मार्क। तो अब फटीक रोते हुए बोलता है बाय द मार्क। अब ये जो नदी में जहाज वगैरह चलते हैं तो पानी के अंदर वो कुछ छोड़ते हैं ताकि उनको पानी की गहराई का पता चले। तो वो ये सब चीज़ें वो जब खेलता था नदी के किनारे तो ये सब चीज़ें सुनता था। तो इसी प्रकार जो उनका प्रवास था उसी प्रकार से ये भी फटीक का प्रवास खत्म होने को आ रहा था। तो इसीलिए वो सब चीज़ें अब याद आ रहे थे। He had heard the sailor on the river steamer calling out the mark on the plumb line. Now he was himself plumbing the unfathomable sea. तो जैसे अभी बताया मैंने कि जो सेलर्स है जहाज चला रहे होते हैं उसी प्रकार ये भी अपनी अब ट्रैवलिंग पे निकला है अनफैथमेबल सी में। मतलब ऐसा समंदर जिसका कोई अंत नहीं है, वो भी अब उसे मानो एक प्रकार पार कर रहा है। Later in the day, Fatik's mother burst into the room like a whirlwind and began to toss from side to side and moan and cry in a loud voice. तो अब जो फटीक की माँ है वो वहाँ पे पहुँचती है। तो फटीक के रूम में इधर उधर घूमती है, यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ घूमती है और बड़ी आवाज़ में रोती है। Bishamber tried to calm her agitation, but she flung herself on the bed and cried, Fatik, my darling, Fatik, my darling. तो फटीक के मामा फटीक की माँ को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी माँ उसके बेड के बाजू में बैठ जाती है और बोलती है, फटीक मेरे बच्चे, फटीक मेरे बच्चे। फटीक stopped his restless movements for a moment. तो अब फटीक के जो मूवमेंट्स जो कुछ भी हो रहे थे वो अब कुछ देर के लिए रुक गए थे। His hands ceased beating up and down and said, "ये." जो उसके हाथ हिल रहे थे वो भी अब रुक रुक गए थे और उसने आखिरकार एक सांस ली, लंबी सांस ली। द मदर क्राइड अगेन, फटीक माय डार्लिंग, फटीक माय डार्लिंग। तो ये सब देख के उसकी माँ और से बोलती है, फटीक मेरे बच्चे, फटीक मेरे बच्चे। फटीक very slowly turned his head and without seeing anybody said, Mother, the holidays have come. तो अब वो हल्के से अपना सर घुमाता है, बिना आंखें बंद रहते हुए ही बिना किसी को देख के बोलता है कि माँ छुट्टियाँ आ गई है। मीन्स ही
इज डेड नाउ। तो इस प्रकार से स्टोरी का एंड होता है।